Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockwell VBA College Vapi, and I'm going to teach you Advanced Financial Management subject. And we will continue our chapter number 4, that is investment decision under risk and uncertainty. So next method, that is risk evaluation technique. So we already complete the standard deviation and covariance. Then second, decision tree approach. So third is what? Risk adjusted discount rate. Short form is what? RADR. Risk adjusted discount rate, short form is what? RADR method. Now ये पर्टिकुलर मेथड से सम्स थियरी पूछी जाती है, थियरी प्लस सम्स दोनों. ओके, पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन में थियरी आती है कि एक्सप्लेन द RADR मेथड करके. सो आपको सिंपल सा उसको एक्सप्लेन करना है. चल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिस्क adjusted discount rate method. Now risk adjusted discount rate approach is one of the risk analysis technique under which risk is incorporated by discounting the risky cash flow at risk adjusted discount rate. Okay, here जो भी now ये it is one of the risk analysis technique, so under which risk is included, incorporate यानी included, risk is included joint by discounting the risky cash flow at risk adjusted discount rate. It means जो आपको कैश फ्लो दिया होगा वो कैश फ्लो को डिस्काउंट करना एट रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट. जैसे हम लोग वहां पे डिसीजन ट्री में जब एनपीवी कैलकुलेट किया वहां पे कैश फ्लो को डिस्काउंट किया एट अ रिस्क फ्री रेट. ओके, बट हियर जो भी हमारे पास रिस्की कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट करना एट risk adjusted discount rate. Now under this method it incorporate the risk by varying the discount rate depending upon the degree of the risk of the project. It means high discount rate are used for the more risky project and lower discount rate are used for the less risky project. Okay, यानी जो यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट में रिस्क इंक्लूडेड है तो वहां पे जो भी हम लोग डिस्काउंट रेट यूज करेंगे ना, इट डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट. जो प्रोजेक्ट हाई रिस्क होगा वहां पे हाई डिस्काउंट रेट यूज करना है एंड जो प्रोजेक्ट में लो रिस्क होगा वहां पे लोअर डिस्काउंट रेट यूज करना है. सो what is risk adjusted discount rate? So risk adjusted discount rate is nothing but it is a sum total of risk free rate and the risk premium rate. किसका टोटल है कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हमें किससे मिलेगा? रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम रेट, which ultimately reflecting the investor's attitude towards the risk. So what is the formula of RADR? कि RADR, that is risk adjusted discount rate, is equal to risk free rate plus risk premium. So first of all, what is risk free rate? Now we all know that what is risk free rate? कि risk free rate is what? It is the rate of return on the risk free security. Okay, so here risk free security is what? It is a security which has no risk of default. Say best example is what? Government bond. Now government bond में अगर आपने invest किया so we can get minimum interest, मिलेगा ही मिलेगा. So वो क्या हुआ आपका? risk free interest rate. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्क फ्री रेट. यानी वो पैसा डूबने के चांसेस नहीं है. कुछ भी हो जाए, इकोनॉमिक कहां पे भी डिप्रेशन हो जाए तो भी हम लोग को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा. ओके, लॉस जाए तो भी इतना इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्क फ्री रेट. So risk free rate is what? It is a rate of return on the risk free security, and the risk free security is what? It is a security in which there is no risk of default, and one of the best example is what? Government bond. This is what? Risk free rate. Whereas what is risk premium? Now risk premium is the premium for systematic risk. यानी जब भी इन्वेस्टर्स रिस्क लेता है, नाउ अलग अलग टाइप के रिस्क होता है. वी ऑलरेडी लर्न इन स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. सो सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर जो प्रीमियम मिलता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्क प्रीमियम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क? कि सिस्टमैटिक रिस्क इज अ रिस्क which cannot be eliminated through investing in a well diversified market portfolio, and it is also known as what? Market risk or non diversifiable risk.
सो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जो आप उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो, जो रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ओके, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी चेंज होना, ओके, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट चेंज होना, इंटरेस्ट रेट चेंज होना, रेपो रेट सब चेंज होना, तो ये जो चेंज होता है इट इज इक्वली अफेक्ट टू ऑल कंपनी शेयर्स। ओके, तो ये रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते बाय इन्वेस्टिंग इन अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एंड दिस रिस्क प्रीमियम इट इज मेजर्ड एज व्हाट? बीटा। ओके, सो RADR इज नथिंग बट रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। तो ये थियोरी याद रखना है कि RADR क्या है? इट इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ द रिस्क मेजरमेंट, एंड यहां पे रिस्क इनकॉर्पोरेट है बाय डिस्काउंटिंग द रिस्की कैश फ्लो विथ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। एंड जो भी यहां पे रिस्क इन्वॉल्व है और डिस्काउंट करना है ना हर एक कैश फ्लो को, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द प्रोजेक्ट। जो हाई रिस्की प्रोजेक्ट होगा वहां पे हाई डिस्काउंट यूज करना है, जो लो रिस्की प्रोजेक्ट होगा वहां पे लो डिस्काउंट रेट यूज करना है। सो RADR का फॉर्मूला क्या है? इट इज अ समेशन ऑफ रिस्क फ्री रेट एंड द रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट क्या है? जहां पे डिफॉल्ट ऑफ रिस्क है ही नहीं, ओके, and risk premium is what? It is a premium for the systematic risk, and it is generally measured as, and systematic risk it is generally measured as what? Beta. Clear? Now next is what? Steps to calculate the net present value. Steps to calculate net present value using RADR approach. ओके, यानी जैसे हम लोग ने डिसीजन ट्री में एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, सो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अप्रोच में एनपीवी कैसे कैलकुलेट होता है? सो वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप। So first of all, we have to calculate risk adjusted discount rate, and how the RADR can be obtained? By adding risk free rate plus risk premium. Okay, and the risk premium is what? Beta into bracket RM minus RF. We already learned in the CAPM model in case of chapter number 2 कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल में ये सब पढ़ा था कि बीटा RM माइनस RF क्या डिनोट करेगा? दैट इज रिस्क प्रीमियम। क्लियर? सो फर्स्ट हम लोग को सम्स में रिस्क फ्री रेट एंड रिस्क प्रीमियम दे दिया होगा, उसको ऐड करके आपको RADR रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट डिसाइड करना है। ओके, एंड इन सम ऑफ द केसेस जहां पे मार्केट रिटर्न बीटा इज गिवन, तो वहां पे आपका रिस्क प्रीमियम ये फॉर्मूला से आएगा, दैट इज बीटा इनटू ब्रैकेट RM minus RF. RM is nothing but market rate of return, and RF is what? Risk free rate of return. So at the first stage we have to calculate RADR. At the second stage, calculate all the risky cash inflow and the cash outflow associated with the projects. But in sum हम लोग को कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो दे देते हैं, हम लोग को कैलकुलेट करना नहीं होता है। सो एक्चुअली रियल लाइफ में क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट रिस्की कैश इनफ्लो एंड द कैश आउटफ्लो एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट्स। And at the third stage, simple, calculate net present value using RADR, that is risk adjusted discount rate. So simple सा है, उसका कैलकुलेशन बहुत इजी है, 3 स्टेप्स में हो जाता है। पहले हम लोग को RADR कैलकुलेट करना है, सेकंड स्टेप में रिस्की कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो डिटरमाइन करना है, बट इन सम इट इज ऑलरेडी गिवन, एंड थर्ड में नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग RADR रेट, दैट इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। क्लियर? जब सम्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। सो दिस इज अ फॉर्मेट। ओके, तो हम लोग को ईयर एंड द कैश इनफ्लो दे देंगे, ईयर एंड कैश इनफ्लो दे देंगे ना। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में कौन सा रेट लेना है? दैट इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट बाय एडिंग रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम। आया समझ में? तो वहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स वो डिस्काउंट रेट लेना है, सो हम लोग को क्या मिल जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू, यानी फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे एट सर्टन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दैट इज RADR रेट से, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सो वी कैन गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे?
कैलकुलेट कर, यहाँ पे ईयर एंड कैश इनफ्लो इज गिवन, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गिवन. सो फर्स्ट हम लोग RADR डिसाइड करेंगे बाय एडिंग रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम. देन जो भी यहाँ पे रेट आएगा वो रेट का डिस्काउंट वैल्यू लेना है, उसको इनफ्लो को, कैश इनफ्लो को ये रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू. टोटल करेंगे तो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आएगा, माइनस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा. क्लियर. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, दैट इज व्हाट एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट रूल. सो अगर एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 यानी एनपीवी पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट, एनपीवी लेस देन 0 यानी नेगेटिव आया तो रिजेक्ट. एंड एनपीवी इक्वल टू 0 यानी हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो इक्वल आया 0, देन project may or may not be accepted, may or may not be accepted. It is depending upon the management. Clear. Now next is what merits of this method. First is what, it is simple method, that is simple to calculate and easy to understand. Okay, here is given, cash flow is given, so it is very much simple to calculate and easy to understand. Second, this method consider the time value of money, because what is the concept of time value of money? The rupee of today worth more than the rupee of tomorrow. Okay, so here whatever future cash inflows is given ना, उसको आप क्या करते हो, डिस्काउंट करते हैं एंड कैलकुलेट करते हो उसका प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सो दिस मेथड कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. थर्ड, इट इनकॉर्पोरेट द रिस्क बाय एडिंग रिस्क प्रीमियम टू रिस्क फ्री रेट. ओके, यानी ये मेथड में रिस्क कहां पे इंक्लूडेड है, दैट इज रिस्क प्रीमियम में ऐड करना है, रिस्क प्रीमियम में, दैट इज सॉरी रिस्क फ्री रेट में ऐड करना है रिस्क प्रीमियम. दैट इज व्हाट इट इनकॉर्पोरेट द रिस्क बाय एडिंग रिस्क प्रीमियम टू रिस्क फ्री रेट. क्लियर. देन नेक्स्ट इज व्हाट डीमेरिट्स. फर्स्ट डीमेरिट्स क्या है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट. इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. एक्चुअली सम्स में तो आपको दे देते हैं कि रिस्क फ्री रेट इज सो एंड सो एंड द रिस्क प्रीमियम इज सो एंड सो, सो वी सिंपली ऐड एंड वी कैन गेट द RADR रेट. बट एक्चुअली RADR को डिसाइड करना, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क. ओके, यानी सिस्टमेटिक रिस्क मेजर करना, देन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करना, देन आफ्टर वी कैन डिसाइड द रिस्क प्रीमियम. इसीलिए जो RADR दैट इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट डिटरमाइन करना, डिसाइड करना, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क. सेकंड डीमेरिट्स, इट डज नॉट एडजस्ट द कैश फ्लो, यानी जो फ्यूचर का कैश फ्लो है वही लेते हैं हम लोग, उसको एडजस्ट नहीं करते हैं. ओके, सो अनदर मेथड में एडजस्ट करते हैं ना, इसलिए यहां पे नहीं करते, तो उसको डीमेरिट्स में ले लिया. एंड थर्ड डीमेरिट्स, यूज ऑफ डिस्काउंट रेट फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और for the same projects over a different years, it involve the subjectivity. यानी over a number of years, 1 to 5 years का प्रोजेक्ट है, so same discount rate यूज करना over a period of time, it is totally subjectivity. It is depending upon the management. Clear? So एक ही रेट डिसाइड करना, यूज ऑफ डिस्काउंट रेट फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और फॉर द सेम प्रोजेक्ट्स ओवर द डिफरेंट ईयर्स, इट इन्वॉल्व द सब्जेक्टिविटी. सो हियर हमारा थियरी कंप्लीट हुआ. फर्स्ट इज व्हाट मीनिंग, देन स्टेप्स, देन फॉर्मेट, देन एक्सेप्ट रिजेक्ट रूल, देन 1 to merits एंड 1 to demerits. क्लियर. सो हम लोग एक सम्स कैलकुलेट करते हैं जो इजी कैलकुलेशन है. सो सम्स क्या है, X Limited is considering one of the two mutually exclusive project, that is project P and project Q, which require cash outlay of rupees 5 lakhs and rupees 7 lakhs respectively. The current yield on government bond is 5%, which may be considered as what, risk-free rate. The risk premium is 3%. The expected net cash flow are as follow. So here 1 2 3 is given, project P का cash flow is given and project Q का cash flow is given. Okay, so हम लोग first project P के लिए कैलकुलेट करते हैं. प्रोजेक्ट P के लिए कैलकुलेट करेंगे. Now first of all यहाँ पे 2 rate is given. ओके, और यहाँ पे याद रखना प्रोजेक्ट P का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है एंड प्रोजेक्ट Q का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 7 लाख है.
एंड रिस्क फ्री रेट, नाउ गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया होता है दैट इज व्हाट रिस्क फ्री रेट. ओके, सो 5% रिस्क फ्री रेट है एंड द रिस्क प्रीमियम 3% है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल RADR रेट आपको डिटरमाइन करना है. सो RADR रेट का फॉर्मूला क्या है? दैट इज रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम. ओके, नाउ रिस्क फ्री रेट सम्स में कितना दिया? 5% प्लस रिस्क प्रीमियम 3%. सो RADR हम लोग को कौन सा रेट यूज करना है? 8%. सो हम लोग का जो आपका स्टेप्स है RADR कैलकुलेट कर लिया. सेकंड स्टेप में क्या करना है? डिटरमाइन करना है रिस्की कैश फ्लो एंड द रिस्की कैश आउटफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. बट इन दिस सम कैश इनफ्लो इज ऑल्सो गिवन एंड द कैश आउटफ्लो इज ऑल्सो गिवन. सो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू. ओके, सो कैसे करना है? फॉर्मेट year 1 2 3. then next is what? cash flow. okay, या तो यहाँ पे कैश फ्लो या कैश इनफ्लो वॉट एवर यू यूज. सो यहाँ पे प्रोजेक्ट पी के लिए कैश फ्लो कितना दिया? 2 लाख, देन 3 lakhs एंड देन 4 lakhs. क्लियर? कैश फ्लो दिया. नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है? डिस्काउंट करना है. तो यहाँ पे डिस्काउंट में कौन सा वर्ड कौन सा परसेंटेज यूज करेंगे? दैट इज डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 8% आपको यूज करना है. कितना करना है? डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 8%. तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. क्लियर? नाउ डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 8%. सो हम लोग को टेबल वैल्यू देखना है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल ऑफ 1 रुपी. सो 8% देखना है. सो फर्स्ट ईयर में कितना है? 0.926, सेकंड ईयर में 0.857 एंड 0.794. सपोज टेबल वैल्यू नहीं मिला आपको तो कैलकुलेटर में 8% कैसे करना है? 8% यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.08 आया. 0.926 फर्स्ट ईयर में इक्वल टू 0.857 सेकंड ईयर में एंड 0.794 थर्ड ईयर में. क्लियर? चलो उसको मल्टीप्लाई करो सिंपल से तो हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा. ओके, दैट इज 1,85,200 आएगा. देन 3 lakhs इंटू 0.857 दैट इज 2,57,100 आएगा. एंड 4 lakh इंटू 0.797 3,17,600. सो हमें क्या मिलेगा? टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू दैट इज 7,59,900. ओके, नाउ मैंने जब आपको फॉर्मेट दिखाया वहां पे डायरेक्टली माइनस इन्वेस्टमेंट कर लिया तो भी चलता है और एक फॉर्मूला लिखेंगे एक स्टेप सो भी चलेगा. सो एनपीवी इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो दैट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट. ओके, सो इनफ्लो कितना आया? 7,59,900 एंड हमारा इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोजेक्ट पी कितना है? 5 lakhs है. सो रुपीज 2,59,900 एनपीवी आया फॉर द प्रोजेक्ट पी. लाइकवाइज फॉर द प्रोजेक्ट क्यू कैलकुलेट करना है. नाउ RADR रेट तो सेम ही होने वाला है. सो ईयर 1 2 3. ओके, देन कैश flow for project Q is given na, that is 3 lakhs, then 4 lakh and then 5 lakhs. Clear? डिस्काउंट करना है. सो डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 8% ही करना है. दैट इज 0.926, 0.857 एंड 0.794. ओके, सो हमें मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. So 3 lakhs into 0.926 that is 2,77,800. 4 lakh into 0.857 3,42,800. 5 lakh into 0.797 3,97,000. So total is what? 10,17,600. Clear? So NPV फॉर्मूला नहीं डालेंगे चलेगा, ऊपर डाल दिया. इनफ्लो कितना आया? 10,17,600 एंड प्रोजेक्ट क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है? 7 लाख से. क्लियर? सो हमारा आंसर आएगा दैट इज 3,00,000
17,600 रुपीज। क्लियर। सो यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना होगा, देयरफॉर प्रोजेक्ट क्यू एक्सेप्ट करना है। सो प्रोजेक्ट क्यू इज एक्सेप्टेड बिकॉज एनपीवी इज हायर एज कंपेयर टू द प्रोजेक्ट पी। क्लियर। सो हम लोग का ये मेथड ओवर, दैट इज RADR। फिर जब हम लोग कंबाइन सम करेंगे वहां पे इसका सम्स आएगा, बट बस वही है, थियोरी एंड वन सम। क्लियर। सो नेक्स्ट मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।